enjoyed Tucker Carlson's podcast way more than I expected to. I was so nervous. He just kept hitting Israel. And I'm like, this is not an act. Yeah. Because there's nothing in it for him. Being an American, podcaster, journalist, doesn't matter. Like, you don't really win anything by being anti-Israel. You're going against the grain. You're getting threats. Both political parties are in the pocket of the Israeli government. So it's like, why is he doing this? I was curious. This is what I think. I've had some pretty big revelations this year, especially. And I think what he realized about America's involvement in this war with Ukraine was that there was an effort to dissuade peace negotiations in the beginning when Putin was actually open to it, because the UK and the US wanted Russia to continue with this war and essentially weaken its own military capabilities. Now, why would the US want that? Why would the UK want that? Well, I mean, think about Russia's allies. Bashar al-Assad, Russia's ally. A weaker Russia, a preoccupied Russia, can't come in and defend Bashar al-Assad when, Al-Qaeda rebels are trying to overthrow the government. If you want to do a regime change war in Iran, it's a lot easier to do it when you don't have to worry about Russia, its ally, coming in to defend Iran. I think he realized these things before I did. Interesting. I just realized them right now. I'm like, wait. Point तो ये काफी इंटरेस्टिंग बता रही हैं. एंड एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, एंड ये प्रोफेसर सैक्स बड़े अच्छे से बताते हैं कि ये लोग ना गेम समझते हैं इस पूरी चीज को, कि ये तो चेस चल रहा है, यहाँ से ये दाव लगा दिया, यहाँ से ये दाव लगा दिया. ये लोग एक्चुअली दुनिया को एक चेस बोर्ड मानते हैं, इसीलिए इस टाइप की प्लानिंग करते हैं. इनको भाई लिव एंड लेट लिव का कोई फॉर्मूला समझा दो, एंड इनके जैसे लोग ना, ये जो पर्टिकुलर कंट्रीज हैं, ये लोग जब तक इनको धूल ना चटाई जाए, ये लोग नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे. एंड इंटरेस्टिंग तो ये रहेगा, एंड आई थिंक अब अपने को दुनिया में देखने को मिल रहा है SCO जो था, एंड कि जिस तरीके से रशिया, चाइना, ईरान, दे हैव कम टुगेदर कि भाई हम लोग तो इकट्ठे हैं, अब भिड़ोगे तो हम लोग भी इकट्ठे हैं. तुम नेटो बना के बैठे हो ना, किस पर्टिकुलर पर्पस से बना के बैठे हो कि रशिया को खराना है, रशिया को खत्म करना है. और इनकी ये सब लोग ना इकट्ठे एकदम भेड़ियों की तरह जाते हैं, क्योंकि इन सबको रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं. इन सब जगह रिसोर्सेज हैं. रशिया वन ऑफ द मोस्ट रिसोर्स रिच कंट्री है. वहां पे आप कहीं भी खोदो पानी, इतना ज्यादा क्रूड ऑयल है वहां पे. इसीलिए ओलिगार्क्स में डिप्लॉय को मिल भी गए वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज. वो अपने तो बहुत पैसे कमा लेते हैं, फिर भी इतने सारे रिसोर्सेज हैं वहां पे, इनको वो सब चाहिए. To his credit. Russia did. Now, let me just be clear about something. I don't agree with what Russia's doing in Ukraine. Obviously, they invaded a sovereign country. I'm totally against that. But at the same time, I don't think that the West cares about Ukraine the way they're claiming to. I think they see this as an opportunity to weaken Russia more than anything. Yeah, absolutely. कोई चांस ही नहीं है. यूक्रेन में देखो लोग खत्म हो रहे हैं. बहुत ही दुखद बात है कैसे लोगों को उठा के ले जाते हैं. एक पर्टिकुलर न्यूज थी, एंड इनफैक्ट उसको मे बी वी कैन ब्रिंग इट अप राइट नाउ. फ्रंट लाइन पे प्रेग्नेंट वुमेन को भेजा जा रहा है यूक्रेन में. ये तो हालत है. एंड उसको बताया जा रहा है कि अरे ये तो एकदम ऐसे एकदम फेमिनिस्ट करके. अरे भाई, अगर देश की ऐसी हालत है कि प्रेग्नेंट विमेन को जाके फ्रंट लाइन पर एज रेडियो ऑपरेटर्स काम करना पड़ रहा है, तो भाई देश तो वैसे ही खत्म है. कुछ तो रहम खा लो. देश ही नहीं बचेगा तो फिर पेट्रियोटिक किस चीज के लिए होते रहोगे आप? लोगों को बचाओ, लोगों से देश बनता है. In the past, you came to Africa with armies and took our lands. Now you come with companies इब्राहिम ट्राओरे, बुर्किना फासो का लीडर. And contracts. You used to rule us with whips and guns. Now you control us with loans and deals. Let me give you examples with names, numbers and facts. Lancor. This is a Swiss company that mines cobalt in Congo. In 2022, they made $256 billion in revenue. But they paid Congo only $500 million in taxes. That's just 0.2% of their earnings. Is that fair? Rio Tinto. This British-Australian company mines bauxite in Guinea. They take out 20 million tons every year. What does Guinea get? Pollution and sickness. Total Energies. This French oil company works in Angola, Nigeria and Congo. In 2022, they made $36 billion in profit. But they leave behind old, dirty pipelines and poor communities. Anglo-American.
This company started in South Africa but is now based in London. They take diamonds, platinum and iron. What's left in South Africa? Millions of unemployed miners. These are just a few examples. There's more you don't see. तो ये क्या AI जनरेटेड होगा ये? क्योंकि ऐसा लगता है, क्योंकि इतनी पता नहीं इतनी अच्छी इंग्लिश से बोल लेता है कि नहीं, पर जो पॉइंट्स है भाई वो तो बहुत वैलिड है। क्या अफ्रीका में इतने सारे रिसोर्सेज हैं, तब से लेके आज तक उनको लूटा जा रहा है, इसीलिए तो गरीबी है वहां। इन लोगों के वजह से है, ये वेस्टर्न पावर्स के वजह से है। पहले यूरोपियंस लूटते रहे, अभी आज के डेट में भी यूरोपियंस लूट रहे हैं अपना वहां पे। इनफैक्ट इस टॉपिक पे तो हमने वीडियो भी बनाया है, कैसे अपनी ही करेंसी चलाते हैं वहां पे, CAF फ्रैंक। अब भाई पूरी करेंसी आप कंट्रोल कर रहे हो किसी देश की, तो मतलब कॉलोनियलिज्म तो है ही है ना। इसीलिए अफ्रीका पुअर है। अगर आप उनके रिसोर्सेज उनके पास छोड़ दो तो दे कैन मेक गुड यूज ऑफ दैट। You're not allowed to have a DNA test in Israel. There are Chinese Jews. I've met them. There are Vietnamese Jews. I've met them. They're not native to the land of Palestine. There are African Jews. They're not native to the land of Palestine either. There are Ashkenazi Jews who are entirely European in their DNA. ये अश्केनाजी हम बात कर रहे हैं नेतन्याहू एंड गैंग की, ये सारे गोरे जितने हैं। That's why you're not allowed to have a DNA test in Israel, because it will reveal that virtually none of them are Semitic, virtually none of them have any ancestral connection to the land. I was viciously assaulted by a manager in the BBC. ये तो बहुत सही बात है। आए तो देखो सब बाहर से हुए हैं, अब सबके DNA टेस्ट कराने लोगों को पता चलेगा सभी इमिग्रेंट्स हैं। तो ये सेटलर कॉलोनियल स्टेट है इजराइल, और इसके ऊपर एक और एडेड लेयर है कि ये वाइट सुप्रेमेसिस्ट है, इसलिए उनकी आपस में लड़ाई होती है। अश्केनाजी जूज और मिजराई जूज हैं उनकी भी। साथ में इस टाइप के और भी पर्टिकुलर न्यूज है इतनी कि जब यहाँ पे सॉर्ट ऑफ से इथोपियन जूज और ये सब आए थे तो उनको बर्थ कंट्रोल पिल्स दी जा रही थी। येमेन से जब जूज आए थे तो उनके बच्चे छीन लिए थे। कितनी ऐसी टाइप की न्यूज है, मतलब घटिया से घटिया कौम। Who had recently converted to Judaism. It's fine. I love all religions. But you can't say I've now converted to Judaism and therefore I have a right to go to the land of Palestine and live in the house of someone whose ancestors have been living in it for thousands of years. Again. बहुत ही तगड़ी बात की है, बहुत ही तगड़ी बात। क्योंकि क्या कहते हैं कि भाई अगर आप ज्यू हो तो आप वहां पे सेटल हो सकते हो, तो वहां पे जाते हैं लोगों के सेटलमेंट्स बना के, कोई दूसरे का घर रह रहा है। अमेरिकन पहुंच जाएंगे वहां पे, कितने तो कन्विक्टेड है वहां पे ऑफ लाइक पीडोफिलिया, मतलब बच्चों के साथ सेक्स क्राइम्स करने के लिए, उसके लिए कन्विक्टेड है। वो उन लोग को वहां पे जगह मिल जाती है। हम तो ज्यू हैं तो भाई हम तो यहाँ पे आके रह सकते हैं। मतलब कितनी, क्या बोलो, ये जो सोच है ये बेसिकली इसलिए की गई है क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन चाहिए, एंड फिर लोगों को भी मिल जाता है कि भाई मैं तो ज्यू हूं तो मैं तो वहां पे जाके रह सकता हूँ, वहां पे मेरे को फ्री फोकट की लाइफ मिलेगी। यहाँ पे तो कन्विक्ट हो रहा था अमेरिका में, उधर जाके अपनी लाइफ फिर से रीस्टार्ट कर सकता हूँ। किसी का घर लेने में उनको प्रॉब्लम भी नहीं है। Did you know that Gaza once had its own international airport? Opened in November 1998 as Gaza International Airport, it became the proud base of Palestinian Airlines and had capacity to serve up to 700,000 passengers per year. For Palestinians, it was more than infrastructure. It was a glimpse of freedom and a rare moment of connection with the wider world. Yet that dream was crushed. The airport was bombed repeatedly. Bulldozers and airstrikes destroyed the runway and vital facilities in 2001 and 2002. Even the ruins were not spared, bombed again in later assaults on Gaza, including in 2024, in acts of vengeful brutality. After its destruction, the ruins took on... मतलब जीने ही नहीं देना ना, जीने ही नहीं देना है। अपना एयरपोर्ट है, अपने लिए वो लाइफ बिल्ड कर रहे थे, पर नहीं, वो भी नहीं मंजूर इन लोग को। Putin's intention in the war. I can tell you what his intention was. When Zelensky said in 7 days, let's negotiate, I know the details of this exquisitely. I flew to Ankara to listen in detail to what the mediators were doing. Ukraine walked away unilaterally from a near agreement. Why? Because the United States told them to. I begged the Ukrainians, and I had a track record with the Ukrainians. I advised the Ukrainians. I'm not anti-Ukrainian, I'm pro-Ukrainian completely. I said, save your lives,
Save your sovereignty, save your territory, be neutral. Don't listen to the Americans. I repeated to them the famous adage of Henry Kissinger, that to be an enemy of the United States is dangerous, but to be a friend is fatal. ये तो बहुत ही तगड़ी चीज है कि मैं तो कई बार सोचता हूँ कि कितने लोगों को एक्चुअली पता है। देखो यूरोपियन के रशिया यूक्रेन वॉर हो क्यों रहा है, जो यूरोपियंस हैं, अमेरिकन हैं, ब्रेन वॉश्ड है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यूरोपियंस, उनको टोटल रूसोफोबिया है, तो उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनको पता हो। पर आप खुद अपनी नहीं देखोगे, उनका क्या रहता है कहना कि अरे कोई भी कंट्री नेटो ज्वाइन कर सकती है तो क्यों नहीं कर सकती। तुम ये नहीं देखोगे कि कैसे इतना एक्सपैंड करते जा रहे हो। ये नहीं देखोगे तुम अगर यूनाइटेड किंगडम के हो या अमेरिकन हो कि अगर मेक्सिको में लगा दें वो लोग अपनी मिसाइल्स, रशियंस या चाइनीज, तो तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी उससे? बिल्कुल होगी। अरे तुम न्यूक्लियर वॉर छेड़ दोगे इस चीज के लिए, और हुआ ही था ऐसा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में। पर ये लोग ना पर प्रोपेगेंडा इतना हेवी रहता है। अब अपने देश में ही क्या बोलो यार, अपने देश में ही क्या बोलो। अभी भी लोग हैं जिनको लगता है कि मेरे घर पे खुद ही हैं यार, जिनको लगता है कराची पोर्ट हमने तबाह कर दिया था। तो ये मूवी हिंद रजाब के ऊपर बनी है, उसके फाइनल मोमेंट्स, एंड रिकॉर्ड सेट हो गया इसमें लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग ओवेशन का। ये वेनिस के फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई है। Palestine, free Palestine. अच्छा, इस टाइप के मोमेंट्स और इस टाइप की स्टोरीज बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है, नंबर्स नहीं सिंक इन करते। अगर आपको बता दिया कि रोज 100 लोग मर रहे हैं तो ऐसा सिंक इन नहीं करता। पर अगर कोई इंडिविजुअल की स्टोरी होती है, एक पर्टिकुलर बच्चा, जैसे यहाँ पे हिंद रजाब की बात हो रही है, कैसे उसको गोलियों से छल्ली कर दिया था, वो लोगों का एक्चुअली इमोशन ट्रिगर करती है। Prime Minister, Foreign Minister, Information Minister, Culture Minister, Economic Minister, almost every single member of the Yemen government was murdered in an airstrike by Netanyahu and Israel. What does Israel think it has achieved by this act of state murder? Has it made Jews safer? Has it made Israelis safer? Has it made the members of the Israeli government safer? This is something I need to tell all these Orientalists dancing on the grave, if grave it is, of Abu Ubaidah, the much loved, treasured voice of the Palestinian resistance these last 2 years past. We don't know who he is, but Israel knows who he is, because they have killed 400 members of his family trying to murder him. And now they say they have murdered him. But here's the point. Do you think there won't be another Abu Ubaidah? Do you think there will not be a queue of people to take his microphone? Do you think the Yemenis will not be able to produce another prime minister? What are you achieving by these things? ये तो बहुत ही सही बात बोली है, क्योंकि इजरायलीज हमेशा यही करते हैं। इनकी तब से रही है फिलोसफी के जो लीडर्स हैं उनको मार दो, हेड ऑफ द ऑक्टोपस जैसे बोलते हैं। अरे भाई, उसके बाद उससे कट्टर लोग और आ जाएंगे, और होता ही है। ईरान का एग्जाम्पल देख लो। और जिस तरीके से इन्होंने येमेन में प्राइम मिनिस्टर और जिनके पूरे कैबिनेट को मार दिया, मतलब पूरे दुनिया में कोई शोर ही नहीं मच रहा। आप इमेजिन करो, आप जिस भी देश के हो, आपके प्राइम मिनिस्टर को उड़ा दिया जाता है, आपके पूरे कैबिनेट को उड़ा दिया जाता है, और आप शांत बैठे रहोगे? ये कहाँ एक्सेप्टेबल है ऐसा? पर इजराइल को सब अलाउड है। क्यों? क्योंकि वो इनका अटैक डॉग है वेस्टर्न वर्ल्ड का। इनका जो पूरा नकाब था ना, ये जो पूरी वेल थी, पूरी एक गाजा और इसके उसमें, तो अब तो उड़ी गई है, पूरी की पूरी उड़ गई है। ये है सर्जी लैवरोव, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया। If you cannot sleep because of Russia-Ukrainian conflict, there are some advices.
to calm you down. First, imagine that this is happening in Africa. Imagine this is happening in the Middle East. Imagine Ukraine is Palestine. Imagine Russia is the United States. क्या बोला है यार, क्या बोला है इस बंदे ने, क्योंकि ऐसे ही होता है, उधर हो रहा है तो हमको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, और अमेरिका तो ये सब करता ही रहता है। तो बेसिकली द पॉइंट ही इज ट्राइंग टू मेक इज कि ये अमेरिका तो ये सब चीजें करता ही रहता है, पूरी दुनिया में होती ही रहती है, तब यू डिडंट हैव स्लीपलेस नाइट्स। अब तुम्हारे घर के पास हो रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है। एंड जस्ट अ वर्ड अबाउट हिम, आई थिंक ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फॉरेन मिनिस्टर जो आज के डेट में। Who did you not at all trust, even though you had to work with them? The Israelis. You didn't trust them? Not as far as I could throw them. We don't allow the Israelis into CIA headquarters because they would always come with gifts, and the gifts had always listening devices packed inside them. And you know, if somebody brings you a gift, you x-ray it. It's the normal process. And we're like, you guys can't keep coming back here every single time trying to bug our conference rooms. So, no more. What percentage of the time did gifts have bugs in them? 100%. Be quiet. No, seriously. Are you kidding me? Absolutely not. I wish I was. 100% of the time they brought gifts that had bugs in them. Yeah. We had a safe house in Virginia, and we would meet with them there. John, was that across the... मतलब ये इजरायलीज का जो पर्टिकुलर नेचर है ना, इनहेरेंट ही इतना खराब है, सबसे बुरी कौम पूरी दुनिया की, क्या बोलो। आई डोंट हैव मच टू से अब इसके। एंड पीवीडी खुद तू नेतन्याहू के साथ जाके पॉडकास्ट कर रहा है, अगर वो देखना हो उसका रिएक्शन तो बताना। पर नेतन्याहू की ना आवाज सुनना ही इतना मुश्किल होता है, तो आप लोग के लिए भी थोड़ा मुश्किल ही रहेगा वो। बट एनीवेज बताना कमेंट में। तो नहीं देखा जाता है, बहुत मुश्किल है बच्चों को ऐसे देखना। अब बच्चों को आप क्यों एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोगों को वर्दी पहनने का हक नहीं है वैसे। इंडियन आ गई। आप जनता के लिए नहीं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। पुलिस वालों की क्लास लगी। इतना भ्रष्टाचार, पूरी डायरी नहीं भेजेंगे। हाई कोर्ट को समझते हैं कि खिलौना है, ये खेलेंगे उससे। निवेदन पिछली बार भेजी थी सब पूरी। हाँ, फिर इस बार क्यों नहीं भेजी? 3-4 डॉक्यूमेंट सब फोटो स्टेट होने क्या डायरी यहाँ से गई सर जी, अल्टरनेट डायरी लिख के दो, एफिडेविट दो कि यहाँ से डायरी सही तरीके से नहीं भेजी गई, हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। लिख गई थी तो उसी में से सर 3-4 फोटो कॉपी होने से मुझसे बच गया सर। आगे से कैसे, तो फिर कैसे आपने पेजिंग की और कैसे आपने मिलान किया डायरी भेजने से पहले? यार देखो, ये तो बड़ा एपिटमाइज करता है, बड़ा अच्छे से दर्शाता है कि हमारे देश की हालत क्या है। करप्शन तो चलो है ही है, हमेशा से थी, अब बहुत ज्यादा है परहैप्स, बट कोई भी पुलिस वाले के रहने से ज्यादा सेफ नहीं फील करता हमारे देश में। हर कोई कहता है अरे यार ठुल्ला आ गया, पुलिस वाला आ गया, मतलब पुलिस वाला कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अपने पैसे लेने के लिए। कोई भी नहीं सेफ फील करता पुलिस वाला रहता है तो। कितनी मतलब आयरॉनिकल बात है। हमारे यहाँ पे पुलिस वाला आता है, अपने को भी लगता है वे फालतू की चेकिंग करेगा, ये करेगा, स्पीड लिमिट देखेगा, कुछ ना कुछ वजह से पैसे हिटने की कोशिश करेगा। पुलिस वालों के तो ये हाल है हमारे देश में। किसी से पूछ के देखना, नो वन फील्स सेफ कि अगर पुलिस वाला दिख रहा है तो हाँ यहाँ पुलिस है, आई फील सेफ। यही लगता है पुलिस वाला है, लूटने आया है। आप क्या आंख मूंद के डायरी भेजते हो? तुम कह रहे मोदी ने किया क्या? अमेरिका क्या कहता था? ये सब चीजें नहीं है ना मेरे लिए। जब वहाँ पे तो अग्रेशन में बोल दिया। जो गर्मी वहाँ दिखा के आया मैं, ताली अलग बजा रहे, चिल्ला अलग रहे, प्योर अग्रेशन। बोलो ना। एक बार कोई इंसान ये सोचेगा कि डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी से बात कर रहे हैं। कैसे मोदी साहब? मोदी चाहिए मोदी। बिना फूके इतना अग्रेशन था, फूक दिया होता तो मैं कह रहा हूँ ना पाकिस्तान खत्म है। अब उस टाइम तो फेमस होने का जुनून था जी, क्योंकि कमेंट नहीं खोले थे ना मैंने। क्या बोलो यार, इस बंदे का एंड में हो तो गया फेमस, पर मैंने इसका इंस्टाग्राम पेज चेकआउट किया है, बहुत ज्यादा वो नहीं है। ये लोग ना वन हिट वंडर होते हैं। और अग्रेशन चाहिए, अग्रेशन। अपना देश ना इस टाइप की घटिया अग्रेशन में डूबा जा रहा है। ये हमारा 3rd एपिसोड था रिएक्ट्स का। कैसा लगा बताना। एंड ऑफ कोर्स अगर किसी ने मेन चैनल नहीं चेकआउट किया तो वो तो जरूर चेकआउट करना।